Yes, in the last lecture we have started the constraint. Okay, we have started the constraint. What is constraint? First, what is constraint? What is constraint, students? Data flow. Yes, conditions that we will apply on the table. Okay, there are different types of constraints in the SQL. The not null constraint, unique constraint, primary key, foreign key, check constraint, default constraint, and create index constraint. Okay, not null constraint and unique constraint we have already covered in the last lecture. Okay, what is not null constraint? What is unique constraint? Tell me first, then we will start with the primary and foreign key constraint. Yes, बताओ चलो, what is not null constraint? What is not null constraint? No null value. Okay, no null value will be accepted by the any columns. Any columns matlab columns on which we have applied the not null constraint. If we apply the not null constraint to particular column, that particular column will not accept the not sorry null values. Okay, means we have to enter some values in that column. Okay, for example, in the student table, if we apply the not null constraint to the student name, then we cannot keep the that column's value blank. We have to enter some value in that name column. Okay, so that is a not null constraint. We have already done the practical in the last lecture. Just see the syntax, how to create the not null, yes, or how to apply the not null constraint. See, create table name. Okay, ID, that means person ID or whatever ID. Write the integer data types and that the right not null constraint. Okay, not null, not, keep this space and null, then comma, next column name, then same. Okay, only you have to write the not null. Okay, only you have to write the not null constraint. Okay, so in this table there are three not null constraint: integer, sorry, ID, last name, and first name. Okay, means we cannot keep the blank of these values. Okay, we have to enter some ID, we have to enter some last name and first name. Integer you can, sorry, age you can keep the blank. Okay, why? Because not null constraint apply nahi kiya. So what is the use of not null constraint? We cannot keep that columns value blank, we have to enter some values. Okay, it is a not null constraint. Okay, means user have to enter some values. Then second constraint, that is unique constraint. Yes, what is unique constraint? What is unique constraint, students? What is unique constraint? Chalo fast. Okay, the unique constraint ensure all the values in columns are different. Very good. No same values. Okay. Primary constraint different. Okay, primary and unique. There is a difference between primary key and unique key. Unique constraint. Okay. First of all, unique constraint. Unique constraint ensure that all values in a columns are different. Okay. All values. Yes, values of columns are different. Okay. Values of columns are different. Okay. Unique constraint. मतलब क्या, the value must be unique for that column. Which column? जिसको हमने unique key constraint we have applied that column. There's a difference. A primary key is also used for that purpose. What is the difference? You can have many unique constraints per table, but only one primary key constraint per table. Okay, this is the difference between unique key and primary key. Okay, you have to remember this thing. Okay, primary key भी वही है कि we cannot enter the duplicate data. Unique key भी वही है, we cannot enter the duplicate data. But what is the difference? Okay, in unique constraint you can assign many unique constraint to multiple columns. Okay, मतलब you can have many unique constraint per table, but only one primary key constraint per table. Primary key आप एक ही assign कर सकते हो, बट यूनिक की आप चाहे उतना असाइन कर सकते हो एक टेबल में है, बट प्राइमरी की क्या होगा, एक टेबल में एक ही हम लोग असाइन करते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड कंस्टेंट. ओके, बाकी दोनों का जो इंटेंशन जो है, मतलब जो यूज, जो पर्पस जो है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, यूनिक वैल्यू होना चाहिए, दैट इज सेम. ओके, तो यूनिक कंस्टेंट आल्सो वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर. हाउ टू राइट द यूनिक कंस्टेंट? सेम, नॉट नल, सॉरी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम. ओके, नॉट नल के जैसे आप लोग यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, यहाँ पे भी लिख सकते हो यूनिक. अदरवाइज लास्ट, मतलब आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द कॉलम्स नेम कॉमा करके यू कैन राइट द यूनिक एंड ब्रैकेट में कॉलम्स नेम यू कैन राइट. तो यहाँ पे आईडी को यूनिक की कंस्टेंट दिया है,
कॉमा करके यू कैन ऑल्सो राइट लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ओके, वो भी कर सकते हो। तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, एंड कॉमा करके यहाँ पे नॉट नल भी, मतलब जैसे नॉट नल लिखा है वैसे यू कैन राइट ये यूनिक भी लिख सकते हो। ओके, तो ये यूनिक की कंस्ट्रेंट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, yes, we are now we are जो भी हम कंस्ट्रेंट वी आर परफॉर्मिंग दैट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अल्टर के टाइम पे आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल, ओके, आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल, और इफ यू वांट टू अप्लाई द कंस्ट्रेंट ऑन द एग्जिस्टिंग टेबल, तो यू कैन यूज दैट कंस्ट्रेंट विद द अल्टर टेबल, ठीक है, आप अल्टर टेबल के साथ यूज कर सकते हो। बट अभी हम लोग नहीं करें बिकॉज वो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग अभी क्या करें, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द टेबल हम लोग क्या करें, कंस्ट्रेंट अप्लाई करें, ठीक है। आप टेबल होने के बाद वो टेबल में अप्लाई भी कर सकते हो यूजिंग दी अल्टर, ओके, बट वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई द कंस्ट्रेंट एट द टाइम ऑफ creation of the table, okay, say now next is primary key constraint. The use of primary key constraint is same as unique key जैसा ही है, okay, unique key and primary key both are, मतलब एक ही है यूज दोनों का, कि डुप्लीकेट डेटा not allowed, okay, in that column, but difference क्या है, only one primary key per table and unique key you can जितना भी चाहिए उतना unique key you can assign, okay। तो प्राइमरी की हमने ऑलरेडी वी हैव डन प्राइमरी की, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो माई एसक्यूएल में यू कैन, दिस इज अ सिंटेक्स, ओके, तो आप लोग ऐसे भी मैंने बताया प्राइमरी की करके ब्रैकेट में आईडी कॉलम नेम यू हैव असाइन, और एट द टाइम ऑफ जब आप कॉलम क्रिएट करते हो एट दैट टाइम भी यू कैन असाइन द प्राइमरी की, आप तभी भी असाइन कर सकते हो। हम लोग देख लेते हैं एक बार, ओके। शो डेटाबेसेस देख लेते हैं कौन से डेटाबेसेस है। शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, okay, test, we are using the test database, use test, okay। now show tables हम लोग देख लेते हैं, so हमारा जो टेबल का नेम है वो चेंज नहीं होगा, सॉरी हम लोग डुप्लीकेट नहीं करेंगे। show tables, only cast person and student table है। now we are creating one more table, okay, in which table we can assign the primary key, okay। so how to create the table, you know, create table, create table order, okay, order नाम का एक टेबल we have created, open the bracket, order id, okay, order id integer, okay, give the size, okay। now we want to apply the primary key to this column, order id को we want to apply the primary key के जो भी order है वो order id unique होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, you can write like this also, primary key, okay, primary key, just लिखना है primary key। next name, order name, next column, write the next column, order name, varchar, okay, 15, okay, we have entered only two columns, चलो, अरे what is the error, क्या error है, create table, order id integer, okay, ठीक है, चलो ये बस नहीं ले रहा है, देन हम लोग उसको जो नेक्स्ट सिंटेक्स है, नेम, varchar, सिंटेक्स चेक करो स्टूडेंट्स, देन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, प्राइमरी
स्पेलिंग चेक करो जो मैं लिख रही हूँ ना, प्लीज चेक द स्पेलिंग। प्राइमरी की हम लोग दे रहे ओ आई डी को, क्रिएट CREAT, क्रिएट टेबल। ओ आई डी जो है हमारा प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी की ऑर्डर आईडी। व्हाट इज द सिंटैक्स एरर, क्या है? क्रिएट टेबल P PID integer प्राइमरी की। स्पेलिंग राइट है ना प्राइमरी की? ओके, नेम, सॉरी, varchar varchar ओके। ऑर्डर, आई थिंक ऑर्डर जो है ना दैट इज कीवर्ड है उसके लिए, ठीक है। सो वी कैन नॉट गिव द टेबल नेम ऑर्डर। ओके, व्हाट इज द एरर, क्या है कि कुछ एरर दिखा रहा है कि सिंटैक्स में प्रॉब्लम है। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर बाय इज अ कीवर्ड, ठीक है। वी हैव सीन द ऑर्डर बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑर्डर बाय इज अ कीवर्ड, तो वी कैन नॉट यूज द कीवर्ड एज अ टेबल नेम। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो चीज है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। ओके, व्हाट इज द एरर? वो एरर क्या था कि वहां पे वो लोग दिखा रहे थे कि एरर है यूजिंग, और यहाँ पे ऑर्डर की जगह पे कुछ तो एरर बता रहे थे। तो वी कैन नॉट यूज द ऑर्डर एज अ टेबल नेम। व्हाई? बिकॉज ऑर्डर इज अ कीवर्ड है। ओके, व्हाट इज अ कीवर्ड? कीवर्ड मतलब फिक्स। ओके, कीवर्ड हैज फिक्स मीनिंग्स। ओके, तो जैसे इफ एल्स वगैरह फिक्स है इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसे ऑर्डर इज अ, वी कैन नॉट यूज ऑर्डर इन दी एज अ टेबल नेम इन दी SQL। ओके, नाउ इट इज अ करेक्ट। क्रिएट टेबल PID। ओके, जो हमारा पी करके एक टेबल क्रिएट किया है, कंसिडर इट पर्सन, तो हमने PID दे दिया है, एंड नेम varchar, एंड PID को असाइन किया है प्राइमरी की। नाउ वी हैव एंटर्ड द वैल्यूज, we have entered the values INSE INSERT, into insert into table name piece वैल्यू। हाउ टू क्रिएट प्राइमरी की, जस्ट हमने जो ऊपर लिखा था दैट इज राइट, करेक्ट ही। ओके, बट ऑर्डर जो है वो हम लोग टेबल के नेम नहीं ले सकते, बाकी सिंटैक्स सेम है। प्राइमरी की, ओके, वैल्यूज insert into table name values। okay, what is the value? 1, then give the name, person name. I am writing here a inverted quote because it is varchar ABC. Okay, now close the bracket and semicolon, enter. Okay, again I am entering these second values, same values. Okay, one I am entering again. What is the error? Duplicate entry, one for key, primary key. Clear? So when we apply the primary key to any column, then we cannot enter the duplicate. Clear students? Yes or no? समझ में आया? If now अभी यहाँ पे अगर I am entering 2, okay, if I am entering 2 and name I am keeping same, तो we ले लिया। Okay, why? Because हमने name को primary key assign नहीं किया, we have assigned primary key only to ID, ठीक है, ID को ही किया। Now again I am entering one more value, name भी change कर देते थोड़ा सा। Okay, XYZ, so this is our primary key। Okay, so when we apply the primary key, we cannot enter the duplicate data, we cannot enter the duplicate data। Okay, this is primary key, primary key we have already done, तो भी हमने किया। Now next is foreign key। Okay, the next main concept is foreign key। What is foreign key? Tell me first, then we will do the practical। What is foreign key? What is foreign key students? What is foreign key? जल्दी से बताओ चलो।
What is foreign key? Foreign key is used to connect the two tables. Okay, two or more tables. Foreign key is used to connect two tables. Okay, link with another table. Yes. Okay, the foreign key is used to connect two tables. Okay, so we can create the foreign key. The foreign key जो है, the foreign key, see, हम लोग example से देते हैं. For example, ये person table है. Okay, so in the person table there are three columns: person ID, last name, and first name. So in the person table, person ID is the primary key for the person table. Okay, now second is order table. In order table there are again three columns: order ID, order number, and person ID. तो order ID is the primary key है उसके खुद के टेबल में, एंड ऑर्डर नंबर एंड पर्सन आईडी, कौन से पर्सन ने कौन सा ऑर्डर दिया है जो हमको कनेक्ट करना है. ओके, टू टेबल्स को कनेक्ट करना है. तो पर्सन आईडी इज द फॉरेन की. ओके, पर्सन आईडी इज द फॉरेन की which is primary key in its own table. So person ID is the primary key for its own table, person table, and person ID is a foreign key in the order table. So we have to enter the data, मतलब person ID का जो data है we have to enter सेम कि जो पर्सन आईडी 1 2 3 है तो वी कैन एंटर ओनली 1 2 3. ओके, मतलब वही डेटा वी कैन एंटर, वही पर्सन आईडी वी कैन एंटर. वी कैन नॉट एंटर द अदर पर्सन आईडी, जो ये टेबल में नहीं है वैसे हम लोग एंटर नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट टू टेबल. तो जो पर्सन ये टेबल में है वही पर्सन वी कैन एंटर इन दिस ऑर्डर टेबल में. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आईडी 1 2 3 है, पर्सन आईडी 1 2 3, तो ओनली 1 2 3 पर्सन आईडी का ही वी कैन क्रिएट द ऑर्डर डेटा. ओके, अनदर आईडी हम लोग एंटर नहीं कर सकते. ओके, देखते हैं हम लोग इसको रन करके. तो व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द फॉरेन की? तो फॉरेन की का सिंटैक्स क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है, जो भी कॉलम्स देना है कॉलम्स दे दो, कंस्टेंट देना है कंस्टेंट दे दो, प्राइमरी की. ओके, ऑर्डर आईडी इज अ प्राइमरी की. देन दिस इज मेन फॉरेन की. ओके, फॉरेन की. ओके, फॉरेन की हमको देना है, किसको फॉरेन की बनाना है? पर्सन आईडी को. कौन से टेबल में? इन दी ऑर्डर टेबल. ओके, रेफरेंसेस किसको रेफरेंस करेगा? वो पर्सन के टेबल में पर्सन आईडी, पर्सन के टेबल में पर्सन आईडी. तो वी कैन कनेक्ट टू टेबल्स यूजिंग द रेफरेंसेस. दिस पर्सन आईडी इज अ column of order table and this person ID is a column of person table. So we can connecting these two tables. Okay, we can connecting these two table, order table and person table, using the foreign key. Using the foreign key, the foreign key use करने के लिए we have to use references. So what is the meaning of this table? Here we are creating the order table. In that order table we have created the one column person ID and वो person ID को हम लोग क्या बना रहे हैं? foreign key बना रहे हैं. foreign key बना रहे हैं तो वो जो person ID है ऑर्डर टेबल में वो किसको रेफरेंस करेगा? इन पर्सन टेबल में पर्सन आईडी है उसको रेफरेंस करेगा, मतलब कनेक्ट कराए थ्रू दी पर्सन आईडी कॉलम. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको रन करके. सिंटेक्स. ओके, सीधी सिंटेक्स. सिंटेक्स क्या है? ओनली इतना ही लिखना है. फॉरेन की, फॉरेन की कॉलम नेम, ऑर्डर टेबल में जिसको भी आपको फॉरेन की बनाना है उसका कॉलम नेम, रेफरेंसेस, पर्सन टेबल नेम, जो टेबल के साथ आपको कनेक्ट करना है वो टेबल नेम एंड वो टेबल का आईडी. ओके, सी विद द एग्जांपल से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. ओके, नाउ सी. ओके, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अवर वन टेबल. पी करके एक टेबल बनाया जिसमें हमने प्राइमरी की दिया है पीआईडी को. ओके, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन टेबल. पी करके एक टेबल बनाया जिसमें पीआईडी है वो प्राइमरी की है. नाउ वी आर क्रिएटिंग वन मोर टेबल जिसमें हम लोग पीआईडी यूज करेंगे एज अ फॉरेन की. We are using the PID as a foreign key in the another table. PID is a primary key है अपने खुद के टेबल में, P टेबल में. Now we are using this primary key. Okay, we are using this PID as a foreign key in another table. हम लोग क्या करेंगे? ये जो P टेबल है उसमें जो भी प्राइमरी आईडी है उसको हम लोग पीआईडी जो है पर्सन आईडी जो उसको हम लोग फॉरेन की बनाएंगे कोई और टेबल में. तो वी आर क्रिएटिंग अनदर टेबल. Okay, so create table. अभी हम लोग क्या करें? ऑलरेडी हमने प्राइमरी की एक जो टेबल है पी करके टेबल है उसमें वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन प्राइमरी की पीआईडी. ना वो पीआईडी को हम लोग यूज करेंगे एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल. तो अनदर टेबल हम लोग अभी क्रिएट करें. क्रिएट टेबल एंड वी हैव ऑलरेडी एंटर दी थ्री डेटा. ओके, हमने ऑलरेडी थ्री डेटा एंटर किया है इन पी टेबल में. ओके, क्रिएट टेबल. टेबल का नेम दे देते हैं हम लोग
एफ दे दे तो आपको समझ में आएगा कि ये एफ मतलब फॉरेन की के लिए टेबल है, ठीक है। ये पी मतलब प्राइमरी की का समझो टेबल, ये फॉरेन की का टेबल समझो, ठीक है। यू कैन गिव एनी नेम बट अभी आपको समझ में, इसलिए मैं एफ दे रही हूँ। क्रिएट टेबल एफ, एफ टेबल में उसका एफ आई डी, फूड टेबल यू कैन कंसिडर, फूड टेबल आप कंसिडर कर लो, ठीक है। एफ आई डी, एफ आई डी जो है दैट इज हमने इंटीजर दे दिया, ओके। अब उसको प्राइमरी की दे दो, ओके। द नेक्स्ट इज फूड नेम, एफ नेम हम लोग असाइन कर दे, कोई फूड का नेम, कुछ भी आइटम वगैरह जो भी आपको, ओके। जस्ट कंसिडर इट, वेर के, ओके। ओके, यस। एफ आई डी जो है वो फूड आइटम में एफ आई डी उसका प्राइमरी की है। सॉरी, यहाँ पे हमने, स्टूडेंट प्लीज टेल मी कि मैम आपने प्राइमरी ही लिखा है कि नहीं लिखा आगे, ये एरर देता ना हमको, प्लीज बताओ मुझे, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक होता है मुझसे भी। एफ आई डी इंटीजर प्राइमरी की, इंटीजर को यहाँ पे मैंने ये नहीं दिया है, साइज नहीं दिया है, कोई मुझे बता भी नहीं रहा है कि मैम आप रॉन्ग लिख रहे हो। ओके, नाउ इट इज करेक्ट, ओके। ओके, ये टेबल एफ टेबल बनाया जिसमें एफ आई डी एक लिया हमने, वो प्राइमरी की है, एक नेम करके हमने लिया है, फूड नेम करके लिया है जो वेरकेट दिया है। नाउ अभी हमको क्या करना है, ऊपर जो पर्सन टेबल, जो प्राइमरी टेबल हमने क्रिएट, सॉरी उसको पर्सन टेबल की मतलब पर्सन टेबल, ठीक है। पर्सन टेबल जो क्रिएट किया था हमने हियर इन द पर्सन टेबल, उसका आईडी हमको यूज करना है इन दिस टेबल में, ओके। तो यू कैन गिव द सेम कॉलम नेम भी दे सकते हो, अदर नेम भी दे सकते हो, ठीक है। तभी हम आपको कंफ्यूजन है, इसलिए मैं सेम नेम आई एम गिविंग हियर। हाँ, एफ नेम ही लिखा है ना यहाँ पे हमने, फूड नेम ही लिखा है ना, यू कैन गिव एनी नेम, ओके, यू कैन गिव एनी नेम। चलो, पी आई डी, ओके, दैट हम यूज करें इंटीजर, ओके। एक हमने कॉलम बनाया, क्या कॉलम बनाया, पी आई डी करके कॉलम बनाया, ठीक है। पर्सन आईडी करके हमने क्या बनाया, वी आर मेकिंग वन कॉलम पी आई डी, पी आई डी करके हमने एक कॉलम बनाया है, ठीक है। जो कॉलम किससे मैच होना चाहिए, किससे कनेक्ट होना चाहिए, जो पर्सन टेबल में प्राइमरी की है ना उसको, तो एक कॉलम बनाया है पी आई डी। नाउ वी वांट टू मेक, ये जो पी आई डी कॉलम है ना उसको हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक दिस कॉलम फॉरेन की, हमको ये कॉलम को क्या बनाना है, फॉरेन की बनाना है। जो पी आई डी हमने जो डिफाइन किया है इन दी एफ टेबल में, तो ये पीआईडी को वी हैव टू, वी वांट टू मेक दिस पीआईडी टू फॉरेन की, व्हाई, बिकॉज ये पीआईडी जो है अपने खुद के टेबल में प्राइमरी की है, वी वांट टू कनेक्ट दिस टू टेबल्स, वी वांट टू कनेक्ट दिस टू टेबल्स। तो हमने ये पीआईडी जो उसके खुद के टेबल में प्राइमरी की है उसको हमको फॉरेन की बनाना है इन एफ टेबल में। व्हाट इज द सिंटैक्स, हमने कॉलम डिफाइन कर दिया। नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स क्या है, फॉरेन की, ओके। फॉरेन की क्या लिखना है, फॉरेन की एंड ब्रैकेट में उसका कॉलम नेम, आपको किसको फॉरेन की बनाना है, तो ही आई एम राइटिंग फॉरेन की, एफ ओ आर आई जी एन, फॉरेन, स्पेलिंग क्या, एफ ओ आर आई, एफ ओ आर ई आई जी एन, एफ ओ आर ई आई जी एन, फॉरेन की, ओके। किसको फॉरेन की बनाना है हमको, ये जो पीआईडी, ये जो कॉलम हमने बनाया ना उसको हम लोग पीआईडी बनाएंगे, सॉरी उसको हम फॉरेन की बनाएंगे। तो फॉरेन की हमको बनाना है पीआईडी को, ओके। व्हाट इज पीआईडी, पीआईडी जो है अभी हमारे ये क्रिएट, ये एफ टेबल में पीआईडी जो है एक कॉलम है, उसको हम लोग क्या बना रहे हैं, फॉरेन की बना रहे हैं। वो फॉरेन की वी आर मेकिंग दिस पीआईडी, हम लोग फॉरेन की बना रहे हैं, बट किसको रेफरेंस, किसको कौन से टेबल में से उसको यूज करना है, कौन से टेबल में से यूज करना है, तो वी हैव टू राइट रेफरेंसेस, क्या लिखना है, रेफरेंसेस, आर ई एफ ई आर ई एन सी ई एस, रेफरेंसेस। ये जो हमने टेबल पीआईडी, हमारे टेबल में जो पीआईडी कॉलम है, वी आर मेकिंग दिस पीआईडी कॉलम फॉरेन की, उसको हम लोग बना रहे हैं। रेफरेंसेस किस, कौन से टेबल के साथ रेफरेंस करें, कौन से टेबल के साथ कनेक्ट करें, टी टेबल के साथ, कौन से टेबल के साथ कनेक्ट करें, टी टेबल के साथ। तो वी हैव, आई एम राइटिंग हियर टेबल नेम पी टेबल, और पी टेबल में कौन से कॉलम के साथ कनेक्ट करना है, पीआईडी के साथ, ओके। पीआईडी के साथ हमको उसको क्या करना है, कनेक्ट करना है, ओके। ओके, क्वेरी ओके, जीरो रोज अफेक्टेड। क्या किया हमने, वी आर मेकिंग वन टेबल एफ,
उसमें एक आईडी डिक्लेयर किया जो उसके टेबल में उसका खुद का प्राइमरी की है, एक नेम डिक्लेयर किया, एक कॉलम लिया पीआईडी करके, वो कॉलम को हमने फॉरेन की बनाया। ओके, वी आर मेकिंग दिस कॉलम फॉरेन की, एज अ फॉरेन की बनाया। उसको किससे कनेक्ट किया, रेफरेंसेस किससे कनेक्ट किया, जो पी टेबल इसमें जो है ना, पी टेबल में, वो पी टेबल में कौन से कॉलम के साथ कनेक्ट किया, पीआईडी के साथ। तो ये हमारा फॉरेन की हो गया। ठीक है, नाउ नाउ पहले हम लोग टेबल का डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाती हूँ कि टेबल में कैसे दिखेगा। ESC डिस्क्रिप्शन एफ, एफ टेबल का हमको डिस्क्रिप्शन देखना है। ओके, एफ आई डी जो है नल नहीं एक्सेप्ट करेगा, वाई, बिकॉज दिस इज प्राइमरी की है। ठीक है, एफ नेम में वो नल एक्सेप्ट करेगा। पी आई डी जो है वो फॉरेन की है। क्या है, फॉरेन की है। ओके, फॉरेन की है, तो वो फॉरेन की जो है वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। बट सी, हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। यस, ज्यादा समझ में आएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पी, हमने किसके साथ कनेक्ट किया, पी टेबल। तो पी टेबल का डेटा फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पीआईडी क्या है, 1 2 3, नेम ABCXYZ। नाउ वी वांट टू एंटर डेटा इन एफ टेबल। ओके, हमको क्या करना है, एफ टेबल में डेटा एंटर करना है। हमने एफ टेबल को पी टेबल के साथ कनेक्ट किया। नाउ आई एम एंटरिंग द डेटा इन द पी टेबल। हाउ टू एफ टेबल, सॉरी, हाउ टू एंटर द डेटा, इंसर्ट into F table. Okay, F table, values, values. Okay, now F टेबल में फर्स्ट क्या है, एफ आई डी। तो एफ आई डी आपको जो भी डालना है, एफ आई डी मैंने डाल दिया 10। ओके, नाउ एफ नेम, एफ नेम आपको जो भी देना है, मैंने फूड का नेम दे दिया, कुछ भी आपको जो भी देना है वो। नाउ क्या है, पी आई डी। ओके, पी आई डी, तो मुझे पी आई डी इसमें से ही कोई डालना पड़ेगा। ओके, वाई, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग टू टेबल। पर चलो मैं अभी 1 डालती हूँ। ओके, 1 डालती हूँ, 1 पी आई डी डालती हूँ कि जो पी टेबल में अवेलेबल है 1, वो आई डी आई एम एंटरिंग। क्वेरी। ओके, नाउ अभी मैं क्या करूँ। ओके, फर्स्ट क्या है, एफ आई डी, मतलब एफ आई डी आप कोई भी डाल सकते हो, फूड आई डी। ओके, उसका कोई नेम मैं दे रही हूँ। ओके, नाउ आई एम एंटरिंग, अब मुझे क्या डालना है, पी आई डी। ठीक है, तो पी आई डी मैं 4 डाल रही हूँ, बट 4 तो अपने खुद के पी के टेबल में, कुछ पर्सन टेबल में 4 आईडी है, नो, बट मैं डाल रही हूँ तो वो नहीं लेगा। कैन नॉट एड और अपडेट चाइल्ड रो, ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। इंसर्ट इनटू एफ वैल्यूज, एफ आई डी मैंने 11 डाला, एफ नेम, सॉरी, एफ नेम मैंने वाई 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 डाला, एंड पीआईडी, पीआईडी मैंने क्या डाला, 4 डाला। तो एरर ले रहा है, कैन नॉट एड। वाई कैन नॉट एड, बिकॉज जो 4 जो है, ओके, 4 जो है दैट इज नॉट अवेलेबल इन पी टेबल, दैट इज नॉट अवेलेबल इन पी टेबल, मीन्स वी कैन एंटर ओनली दैट पीआईडी विच आर अवेलेबल इन पी टेबल। समझ में आया, यस और नो। तो दिस इज अ फॉरेन की, ये क्या है, फॉरेन की है। ओके, नाउ अभी हम लोग इसमें और डेटा डालेंगे। इंसर्ट इनटू एफ वैल्यूज। ओके, वैल्यूज यू कैन एंटर, एफ आई डी है तो कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हो, नेम कुछ भी दे दो। ओके, ओके, नाउ नाउ अभी हम लोग 2 डालेंगे। पीआईडी, वी हैव टू एंटर पीआईडी, पीआईडी हम लोग 2 डालेंगे। ठीक है, तो वो ले लेगा, व्हाई, बिकॉज पीआईडी जो है वो पर्सन टेबल में 2 का आईडी है, तो हम लोग उसको डालेंगे। तो क्वेरी, ओके, नाउ सी, कॉमा, मैं डालू 3। ओके, पीआईडी जो है वो 3 डालू, जो पर्सन टेबल में 3 है तो मैं डालू, तो वो लेना चाहिए। ठीक है, बट नहीं लिया, व्हाई, व्हाई, व्हाट इज द एरर, बताओ मुझे क्या एरर है। मैंने क्या रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू एफ वैल्यूज 12 वाई 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 3, पर्सन आईडी तो मैंने 3 डाला है, जो 3 अवेलेबल है। तो क्या एरर आ रहा है, बताओ मुझे, रीड एरर और बताओ क्या एरर है। चलो फास्ट, कौन बताएगा मुझे। यस, अरुण, वेरी गुड। ओके, यस, और किसने आंसर दिया, यस, प्राइमरी की है, गुड।
ओके, क्यों 12 नहीं लिया उसने? बिकॉज जो 12 जो है वो ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड इन दी एफ टेबल। ओके, एफ टेबल में ऑलरेडी हमने इसमें यहाँ पे देखो 12 डाला हुआ था, एंड 12 क्या है? प्राइमरी की है। एफ आई डी जो है वो प्राइमरी की है। ओके, तो वी कैन नॉट एंटर दी अगेन 12। व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड दी एफ आई डी 12, तो वी कैन नॉट एंटर अगेन 12। तो दिस इज अ प्राइमरी की। ओके, तो ये आपका हो गया फॉरेन की एंड प्राइमरी की। दिस इज योर फॉरेन की एंड प्राइमरी की। नाउ हम लोग सिलेक्ट करके देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टेबल। ओके, एफ टेबल, एंटर। सी, ओके, एफ आई डी डुप्लीकेट हमने 12 डाला तो एंटर नहीं हुआ। पीआईडी वी कैन एंटर ओनली पीआईडी 123। हम लोग वही पर्सन का डेटा एफ टेबल में डाल सकते हैं, फूड टेबल में डाल सकते हैं कि जो पर्सन टेबल में है। सो दिस इज अ फॉरेन की। वी कैन कनेक्ट टू टेबल्स। ओके, तो वी कैन एंटर द डेटा ऑफ द फूड्स टेबल। कौन सा डेटा डालेंगे? कि जो पर्सन टेबल में है वही पर्सन का डेटा हम लोग फूड टेबल में डालेंगे। तो ये आपका हो गया फॉरेन की। दिस इज मेन डीबीएमएस में मेन कंसेप्ट यही है, फॉरेन की एंड प्राइमरी की। अगर आपको फॉरेन की प्राइमरी की नहीं समझ में आएगा तो डीबीएमएस मतलब कुछ पढ़े ही नहीं आप लोग। ओके, बाकी सब चीज ठीक है, बट दिस इज अ मेन कंसेप्ट, व्हाट इज फॉरेन की, व्हाट इज प्राइमरी की। ओके, तो ये आपका हो गया फॉरेन की। तो इन दिस टेबल, इन एफ टेबल, FID is a primary key and PID is a foreign key. Okay, PID is a foreign key, but this PID is a primary key in its own table. Okay, ये जो PID है वो अपने खुद के टेबल में, P टेबल में क्या है, पर्सन टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। और वही PID जो है वो F टेबल में, फुल टेबल में क्या है, फॉरेन की है। क्लियर? तो ये जो हम थियरी पढ़ा था उसका हमने प्रैक्टिकल किया। नाउ एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट? अगर डाउट है तो प्लीज नाउ क्लियर नाउ। ठीक है, हम लोग और उसमें एंट्रीज डाल के रखेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। एनीवन हैज एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी करके दिखाया, एरर वाला भी मैंने आपको करके दिखाया, विदाउट एरर वाला भी एंट्री करके दिखाया। नाउ अभी आपको इफ है कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी। ओके, यस, सो मैनी स्टूडेंट्स इन द लेक्चर में सब है और उनको डाउट नहीं है। बाकी सब अजय, पूजा, कोहिनूर, इरशाद, सरफराज। वेरी गुड, ठीक है, चलो। तो वी हैव कवर्ड नॉट नल कंस्टेंट, यूनिक कंस्टेंट, प्राइमरी की कंस्टेंट, फॉरेन की कंस्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कंस्टेंट इज द चेक कंस्टेंट। ओके, चेक कंस्टेंट। ओके, ये ठीक है। तो चेक कंस्टेंट इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन द कॉलम। ओके, the check constraint is used to limit the value range that can be placed in a column. If you define the check constraint on a column, it will allow only certain values for this column. If you want to enter the particular condition to the particular column, यही डेटा डालना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, एज जो है फॉर एग्जांपल एज 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए कुछ कंडीशन। इफ यू वांट टू अप्लाई टू पर्टिकुलर कॉलम देन यू कैन यूज द चेक कंस्ट्रेंट। ओके, if you define a check constraint on a table, it can limit the values in certain columns based on values in other columns in the row. For example, देख लेते हैं हम लोग। The following SQL create check constraint on the age column पे उन्होंने बनाया when the person table is created. The check constraint ensure that the age of person must be 18 or older. कैसे उन्होंने दिखाया? Create table, person table बनाया, ID को not null constraint अप्लाई किया, last name को not null constraint अप्लाई किया, first name में column डिफाइन किया है, एज डिफाइन किया है, एंड कंस्टेंट चेक मतलब कंडीशन क्या चेक करना है कि एज जो है 18 और 18 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। स्टूडेंट प्लीज रीजॉइन। ओके, रीजॉइन करो, ये कंस्टेंट हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। ओके, तो एज एक उन्होंने कॉलम लिया है एंड देन उन्होंने कंस्टेंट दे आर अप्लाइंग द कंस्टेंट यूजिंग चेक कि एज जो है ग्रेटर देन 18 और ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। ओके, तो दिस इज अ चेक कंस्टेंट। तो मतलब कॉलम्स जो है उसमें पर्टिकुलर यही वैल्यू डालना है। ओके, तो कंडीशन चेक करवाना है तो आप यूज कर सकते हो ये वाला कंस्टेंट। ओके, तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं, प्लीज रीजॉइन करो। ओके, रीजॉइन। जस्ट कैसे लिखना है, व्हाट इज द सिंटैक्स, यू हैव टू रिमेंबर द सिंटैक्स। स्टूडेंट्स को सिंटैक्स याद होगा तो कर पाओगे, अदरवाइज कोई एरर ही आएगा। अगर माइनर मिस्टेक भी करे होगे माई एसक्यूएल में, माइनर मिस्टेक भी होगा, एक स्पेलिंग भी इधर से उधर हो गया या तो सेमीकोलन मिसिंग है
तो भी एरर डिस्प्ले होगा. तो व्हेन यू आर डूइंग प्रोग्राम्स एट होम तो प्लीज बी केयरफुल. ओके, ड्यूरिंग द टाइपिंग के टाइम पे थोड़ा ध्यान देना उसको. आई होप कि इंस्टॉल किया है सब लोगों ने.